नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। उत्तरायण की पूर्व संध्या पर वडोदरा में गला कटने की एक और घटना। जेतलपुर ब्रिज पर वाहन चालक घायल। आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले से दहशत। वडोदरा और जंबूसर में 2 घटनाएं दर्ज। और घायल परिंदों को बचाने वडोदरा में वी केयर सेंटर की सुविधा। घायल पशु पक्षियों को यहां लाकर बचाई उनकी जान। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण की पूर्व संध्या पर जेतलपुर ब्रिज से गुजर रहे वाहन चालक का गला कटने की घटना सामने आई है। उत्तरायण से पहले ही वडोदरा में पतंग की डोर से दुर्घटनाओं का दौर जारी है। एक और वडोदरा शहर उत्तरायण को जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वडोदरा के जेतलपुर ब्रिज से गुजर रहे निखिल पटेल नामक वाहन चालक का गला पतंग की डोर से कट गया। उन्हें फौरन अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया, जहाँ उनके गले में 5 टाँके आए हैं। मैं घर पे जा रहा था तो जेतलपुर ब्रिज पे अचानक डोरी गिर गई तो मेरे को गले में लग गई। मेरे को उधर साइड में थोड़ा लग गया है, 5 टाँका आ गया है। આજે મને એક મારા મિત્રનો ફોન આવ્યો કે જેતલપુર બ્રિજ પરથી જ્યારે લોકો પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે એમના ગળામાં દોરીથી અકસ્માત થયો છે। મને જાણ થતાં તાત્કાલિક હું એસએસજી પર આજે આવ્યો છું અને મારા મિત્રને સારવાર કરાવીને એને 5 ટકા આવ્યા છે। તો એ સારવાર કરાવીને આજે અમે એને ઘરે રવાના તો કરીએ છીએ, પણ મારે જે આજે મકર સંક્રાંતિના પર્વ નિમિત્તે જે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે એ ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ લોકો ના કરે અને સાવચેતી રાખે, એના માટે વડોદરાના તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે ચાઇનીઝ દોરાથી દૂર રહો અને આપણો સાદો દોરો વાપરો અને શાંતિથી મકર संक्रांति पर्व उजવો। आवारा पशुओं के साथ साथ आवारा कुत्ते भी अब नागरिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं। वडोदरा के निजामपुरा में नटराज सोसाइटी में रहने वाली 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला अलका भट्ट पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं और फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ ने कॉर्पोरेशन पर सवाल उठाए हैं। કૂતરાઓનો ત્રાસ વધી ગયો છે કેમ કે કૂતરાઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે, ઘણી સંખ્યા થઈ ગઈ છે। પહેલાં કૂતરા આટલા પ્રમાણમાં હતા નહીં એટલે અને કૂતરાઓની સંખ્યા વધી છે એથી કૂતરાઓનો ત્રાસ પણ વધી ગયો છે। માણસ ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતો। મહિલાઓ અત્યારે છે ને કૂતરાઓ રાતનો સમય થાય, સાંજ પડવા લાગે એટલે કૂતરાઓ ભસવાનું શરૂ કરી નાખે। કોઈ પણ વ્યક્તિ જાય અજાણ્યું લાગે એટલે ભસવાનું શરૂ થઈ જાય। પહેલાં તો ભસતા જ હતા કૂતરા, પણ હવે તો રસ્તામાં કોઈ પણ નાનું બાળક હોય, ઘરડું હોય, કૂતરાને આખી ગલીથી ગલી મૂકવા જાય છે। વ્હીકલ પાછળ દોડે છે, 4-5 કૂતરાઓ એક વ્હીકલ પાછળ દોડતા હોય છે। અને હવે તો કૂતરાઓનો ત્રાસ એટલો વધી ગયો છે કે ઓન વ્હીકલ કૂતરાઓ જમ્પ કરે છે પગ પર, બચકા ભરવાનું। આ નિઝામપુરાનો નટરાજ સોસાયટીનો વિસ્તાર છે। અમર પાર્ક સોસાયટીમાં એક આંટી રહે છે। એ આંટી રાત્રે મોડા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો પ્રોગ્રામ પતાવી અને બસમાં ઉતરીને ચાલતા ચાલતા એમના ઘરે જતા હતા તો આ નટરાજ સોસાયટી પાસે ઘણા બધા કૂતરાઓ એમને ફરી વળ્યા। એમને એટલી બધી જગ્યાએ કરડી ગયા કે આંટી ખૂબ જ ગંભીર હાલતમાં છે, સિનિયર સિટીઝન છે, એ એમનો પોતાનો બચાવ પણ નહીં કરી શક્યા। એટલા બધા કૂતરાઓ એમને ફરી વળ્યા અને એટલા બચકા ભર્યા છે, એટલું બધું કરડી ગયા છે કે આ આંટી બહુ સિરિયસ થઈ ગયા છે। અત્યારે એ પોતે સત્યમ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે। એટલે મારે કોર્પોરેશનના તંત્રને એટલું જ કહેવું છે કે કોર્પોરેટર તરીકે હું દરેક સભામાં વારંવાર રજૂઆત કરું છું કે તમે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી પણ આ કૂતરાઓની વસ્તી નિયંત્રણમાં આવતી કેમ નથી? દરેક શેરીએ, દરેક ગલીએ, દરેક સોસાયટીમાં એટલા બધા કૂતરાઓ વધી ગયા છે કે નથી બાળકો સુરક્ષિત, નથી યુવાનો સુરક્ષિત, નથી મહિલાઓ સુરક્ષિત કે નથી સિનિયર સિટીઝનો સુરક્ષિત। તો કરોડો રૂપિયા ખર્ચો તમે કરો છો ક્યાં? માત્ર કાગળ પર તમે કરોડો ખર્ચી અને લોકોને ઉલ્લુ બનાવો છો। એટલે આ પ્રકારની બહુ જ ગંભીર ઘટના છે। આમાં કોર્પોરેશનના તંત્રએ તાત્કાલિક પગલાં ભરવા જોઈએ એવી મેં માગણી પણ કરી છે। મેં મારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ પોસ્ટ મૂકી છે કે આ તંત્ર बिल्कुल निष्फल निवड़ेलू तंत्र है, जेना कारणे वडोदरा शहर में आवा बनाव बनता रहे। गुजरात के भरूच के जंबूसर के एक गांव में भी कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ एक आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काट लिया, जिससे ग्रामजनों में कुत्तों को लेकर डर देखने मिल रहा है। और उनके बच्चों को ये कुत्ता काट गया, कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं। मैंने जैसे ही मालूम पड़ा तो एचआर में जान करी।
HR वालों ने ऊपर जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ये क्या कुत्ता ने काटा है सर, आज ही काटा। सुबह में घर के आगे खेल रहा था, नहीं रूम के आगे, वहीं पे काटा दिया। 7-8 लोग को काटा है। वडोदरा में एनिमल रेस्क्यू एंड इमरजेंसी के लिए काम करती वी केयर संस्था ने मकर संक्रांति पर घायल होते पंछियों के लिए एक विशेष केयर सेंटर वडोदरा अलकापुरी बर्ड सर्कल पर बनाया है। यह सेंटर 14-15 जनवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक घायल पंछियों के लिए कार्यरत रहेगा। मकर संक्रांति पर्व, हम सबको इस पर्व का साल भर इंतज़ार होता है, मगर उसी के साथ साथ एक बात हमेशा हर साल हमें आपको बतानी पड़ती है, और वो ये कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तब समय का ख्याल रखें। सुबह जब पंछी अपने घोंसले छोड़कर जाते हैं अपना दाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए, और शाम को जब पंछी लौटते हैं अपने घोंसलों की ओर, ये 2 समय को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ में अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं और पंछी नज़र आते हैं तो उस डोर को आप छोड़ दें। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो डोर चला जाए, वो पतंग चली जाए, मगर फ़र्क एक बात का बहुत पड़ेगा कि उन पंछी को आप जीवन दे पाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात हर साल हम आपको बताते हैं, और अगर कोई पंछी घायल नज़र भी आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम बताते हैं। वही बात बताने के लिए फिर एक बार मैं जो सेंटर हर साल चकली सर्कल पर बनता है वी केयर का, वहाँ पर पहुँची हूँ। और अब गुजराती अगर आप पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पक्षी बचाओ अभियान है और घायल पक्षीओना सारवार माटेનું આ केंद्र છે। ये सेंटर हमेशा जो भी पंछी घायल होते हैं उत्तरायण के मौके पर, वो यहाँ आप लेकर आ सकते हैं। इमरजेंसी में आप कोई ऐसा पंछी है जिसे आप नहीं लेकर आ सकते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9409027166 पर। अब यहाँ किस तरह से सारवार होती है पंछियों की, और कौन डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होंगे, किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट पंछियों को मिलती है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वी केयर की प्रतिभा मैडम पंचाल हमारे साथ जुड़ी है। उसके बाद में मैं सेंटर दिखाऊंगी। मैम, क्या कहेंगे इस सेंटर के बारे में जो हर साल आप लगाते हैं और पंछियों को सारवार देते हैं? हम लोग पिछले 17 साल से ये सेंटर यहाँ पे चकली सर्कल पे लगा रहे हैं पक्षियों को बचाने के लिए, और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आनंद वेटनरी कॉलेज के एसोसिएशन में हम ये सेंटर लगाते हैं हर साल। और हमारे पास 2 MBSc डॉक्टर्स सारवार यहाँ पे बैठेंगे और 4 BBSc डॉक्टर्स हैं और 4 LIs हैं हमारे पास, प्लस अटेंडेंट्स एंड अराउंड 20 वॉलंटियर्स तो पिकअप करने के लिए कॉल्स अगर आते हैं तो। और लोग यहाँ पे भी बहुत लेके आते हैं, और ऑन द स्पॉट हम लोग डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पूरी रहती है कि हम यहीं पे सर्जरी और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम यहीं पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और पोस्ट सर्जरी के लिए हम लोग शेल्टर पे रखते हैं बर्ड्स को, और इनके जो वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करना होता है वो हम वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे आईबीस है या ऐसे कोई शेड्यूल्ड बर्ड्स आते हैं तो वो हम इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, उसको हम नहीं रखते। आपने कहा पिकअप की बात जो आपने बताई, तो ये एम्बुलेंस आप जो देख रहे हैं वो ये एम्बुलेंस जाती है मैम पिकअप के लिए? ये हमारी एम्बुलेंस है। ये हम लोग डेली मॉर्निंग 10 to 5 की सर्विस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पूरा बड़ौदा कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉल्स लगभग एवरी डे 50 to 60 कॉल्स आते हैं। बट एज सब लोग को पता है कि एनिमल्स पकड़ने में इतना टाइम लगता है कि हम लोग हार्डली 8 to 10 एनिमल्स पिकअप कर पाते हैं एम्बुलेंस में। पर अभी लोगों का अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि हमारे शेल्टर पे एटलीस्ट 15 to 20 केसेस लोग लेके खुद आते हैं, क्योंकि हम सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाती है। इवन बर्ड कैंप में भी यही होगा कि हमारी एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच पाएगी, पर हमारे वॉलंटियर्स हैं जो अपने खुद के व्हीकल्स पे आते हैं और वो पिकअप करते हैं और लेके आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए।
और लोग भी अपने पब्लिक भी लेके आती है काफ़ी। इसके साथ में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम जब कहीं से गुजर रहे हैं, रोड पे आपको पंछी, घायल पंछी आपको गिरा हुआ मिल जाता है, तो आप यहाँ चकली सर्कल पर अलकापुरी इलाका आप सब जानते हैं, अलकापुरी इलाके में बर्ड सर्कल है। बर्ड सर्कल अब नहीं रहा क्योंकि नया ब्रिज जो बना है, अटल ब्रिज के बिल्कुल नीचे बर्ड सर्कल के पास ही ये सेंटर बना है और ये सेंटर में दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। मैम, कुछ मेडिसिन के बारे में बताइए। हमारे जो डॉक्टर हैं सीनियर वेट डॉक्टर पायल चावड़ा, वो अभी यहाँ पे नहीं आ सके क्योंकि हमारा शेल्टर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सो वो उन्होंने सब ये मेडिसिन पूरा शेड्यूल करके अरेंजमेंट किया है। फिर हमारे एलाइज हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो लोग सब मॉर्निंग में 8 o'clock से दे विल बी एट ड्यूटी। फिर आनंद से डॉक्टर संगीता और उनके 2 और जूनियर वेट्स आ रहे हैं। डॉक्टर संगीता इज़ अ सीनियर वेट और 2 जूनियर वेट्स BBSc आ रहे हैं, प्लस उनकी पूरी टीम आ रही है। सो वो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो ट्रीटमेंट, सर्जरी, और हमने ऐसे भी टेप यूज़ मतलब हम लोग लाए हैं जिससे कि अगर हल्का फुल्का चोट लगाओ तो हम उसको बैंडेज करके वी कैन मतलब फ्लाई कर सकते हैं। अगर बर्ड फ्लाई करने लायक है तो हम उसको छोड़ देंगे, उड़ा देंगे, तो वो ऑटो हीलिंग हो जाएगा उसमें। सो उस टाइप का सब फैसिलिटीज़ हमने मेडिसिन और वो सब अरेंज किया है। और हमको इस बार हमारा ये बर्ड कैम्प न्यूमरेटर कंपनी ने स्पॉन्सर किया है फॉर मेडिसिन स्पेसिफिकली। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि जो बैंडेज इस्तेमाल होती हैं तो उसे जरा सा चोट आई है तो वो फ्लाई कर सकता है। इतने सालों से ये सेंटर आप यहाँ हमेशा करते हैं उत्तरायण के मौके पर, तो कैसी इंजरी वाले बर्ड्स आते हैं? ज़्यादातर उनको गर्दन पे इंजरी हुई है, पैरों में हुई है, किस तरह की इंजरी हुई है? या ज़्यादातर तो जैसे पैर 2-3 टाइप के आते हैं। कई बर्ड्स ऐसे आते हैं कि पूरे थ्रेड में एंटेंगल्ड होते हैं, तो हम सिर्फ उसको थ्रेड निकाल देते हैं और उड़ा देते हैं, तो इतनी इंजरी नहीं होती है। सेकेंड टाइप के आते हैं जैसे कि पैर कट गया होता है एंड विंग्स कट गए होते हैं, सो उनको हमको पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखना पड़ता है बैंडेज करके। सर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होते हैं जिनका कि हमको स्टिचेस लेना पड़ता है, और कुछ पोर्शन जैसे कट करके उसके स्टिचेस लेके, पर हमारा जो सर्वाइव कर जाते हैं तो अराउंड लाइक 80% सर्वाइवल हो जाता है, और जो आके तुरंत ही ऑन द टेबल डेड हो जाते हैं वो यहीं पे डेड हो जाते हैं, मतलब वो पता है कि दे विल नॉट सर्वाइव। पर जैसे सर्जरीज करते हैं या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं उनका सर्वाइवल चांसेस काफ़ी बड़ा होता है। फिर वो हम डिपेंड करता है 10 days 20 days 1 महीना तक हमारा चलता रहता है कि वो उड़ाते रहते हैं जैसे जैसे ठीक होता है। और हमारा शेल्टर ऑलरेडी थोड़ा फार है, गांव में है, ग्रीनरी बहुत है, तो हम वहीं पे उड़ा देते हैं। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ कबूतर और ये सब वो वहीं रह जाते हैं शेल्टर पे, क्योंकि हमारा नेचुरल हैबिटेट है। शेल्टर पे भी बहुत पैरट्स हैं, मोर हैं, ये सब अपने आप आते हैं और जाते हैं, मंकीज़ हैं, मतलब नेचुरल है। इट्स नॉट दैट कि हम खाली डॉग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सारे बर्ड्स भी बहुत आते हैं, तो उनको हम उड़ा देते हैं, वो वहीं रहते हैं, हम उनका खाना पूरा डालते हैं। बरोडियंस को क्या कहोगे ये सेंटर का? वैसे तो मैं चाहूँगी कि ये सेंटर का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि आप सब समझदारी से पतंग अगर उड़ाते हैं तो पंछियों को नुकसान नहीं होगा, उनको इंजरी नहीं होगी, और ये सेंटर पे कम से कम पंछियों को लाने की ज़रूरत हो। मगर फिर भी मैम, कि जो भी वडोदरा के वासी हैं जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि ये सेंटर का वो इस्तेमाल करें पंछियों को बचाने? मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो डेडली कोटेड जो ग्लास कोटेड मांझा होता है वो यूज़ नहीं करें। फेस्टिवल है, आप एंजॉय करें। प्लस मॉर्निंग और इवनिंग टाइम जो आपने स्टार्टिंग में बोला, वो अगर आप ध्यान रखें तो कम से कम इंजरी होगी, बिकॉज़ वही टाइम होता है बर्ड्स का घर पे जाना और आने का, तो वो अगर टाइम का ध्यान रखें तो इंजरी कम होगी। ग्लास कोटेड मांझा ना यूज़ करें तो पक्षियों को मतलब इंजरी कम होगी। प्लस अगर ज़रूरत हो तो ऑफकोर्स हम इसीलिए बैठे हैं, पर हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कमी आए तो उनको परेशानी ना हो बर्ड्स को, एंड दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम, और इतना अच्छा यहाँ प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए पंछियों की ये सेंटर बना है। तो ये सेंटर में अगर आपको कोई भी पंछी नज़र आता है ऐसा इंजरी वाला, तो उसे ज़रूर यहाँ लेकर आए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं। मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन वैसे बहुत ज़्यादा हमारा एक रिचुअल माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हम लोगों को दान पुण्य करना होता है। सुबह सवेरे से गायों को खिलाना, बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो पंछियों के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आज के दिन ये बात ज़रूर अपने आप में उतारें, लोगों को बताएं, क्योंकि हम जब छत पर जाते हैं तो इतना ज़्यादा शोरगुल होता है कि उस बेजुबां पंछियों को उनका दर्द हमें महसूस नहीं होता। उनके दर्द में जो आवाज़, क्योंकि उनके पास आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करें। उस म्यूज़िक के शोरगुल में ऐसा ना हो कि हम हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे उत्सव के लिए किसी की जान को ख़तरे में डालें। मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर त्योहार मनाना एक बहुत अलग मज़ा देता है, तो इसी तरह त्योहार मनाएं। गुजरात के वडोदरा में पैदल रिक्शा चलाने वाले शख्स को झांसा देकर सरेआम दिन दहाड़े हजारों रुपए की चोरी कर ली गई। वडोदरा में रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले शख्स को झांसा देकर 12,000 रुपए की चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें रिक्शा चालक को बातों में उलझाकर उसका पर्स चोरी कर लिया गया। सवारे मार्केट जतेलो तो महावीरोल चौकड़ी तरफ थी 2 जणा आया અને એક્ટિવા હતી એમની કને, તો મને એવું કીધું કે મહાવીરોલ ચોકડી પડી ગયું છે, મારું પાકીટ તો તમને લીધું છે ભાઈ? મેં કીધું ના ભાઈ મેં નહીં લીધું છે, મેં મજૂરીઓ માણસ, મેં શું કરું લઈને? તો એમને એવું કીધું છે કે તમને જ લીધું છે કે 2 થી 3 જણાને મને ત્યાં આગળ કીધું કે એક પગ રિક્ષાવાળો ગયો એને લીધું છે। મેં કીધું ભાઈ મેં મજૂરીઓ માણસ, મેં શું કરવા લઉં? પણ તો બતાવો તો તમારા ખિસ્સા, તો મારા ખિસ્સામાંથી મેં પાકીટ કાઢ્યું, લઈને નાહી ગયા છે। અહીંયા ત્યાં ભાઈ છે ને દોડ્યા ને, અમે ત્યાંથી સામેથી જોતા હતા, તો આ ભાઈ દોડ્યા, ચોર 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 કરીને દોડ્યા, પહેલા મને આગળ સુધી ગયા, પછી ભાઈ ભાગી ગયા, પેલા એક્ટિવાવાળા કઈ હતા 2 જણા, પછી આ ભાઈ પછી પાછા આવ્યા, અહીંયા આવીને પછી કહે છે મારે ચોરી થઈ ગઈ છે। અમે ત્યાંથી આવીને પૂછ્યું મેં શું થયું તમારે? તો કે ચોરી થઈ ગઈ છે। હું કેટલા થયા? 12,000 रुपया ચોરી ગયો ખિસ્સામાંથી કાઢીને। गुजरात के वडोदरा के प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण, लोहड़ी और पोंगल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति का पर्व देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के रूप में पतंग उड़ाकर मनाई जाती है, वहीं पंजाब में लोहड़ी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं तमिल समाज द्वारा इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण का पर्व मनाया गया, जिसमें 1 से 8वीं कक्षा के प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विभाग के 1300 जितने छात्रों ने हिस्सा लिया। इस पर्व को मनाने के भागरूप अलग अलग वेशभूषा के साथ शिक्षकों और छात्रों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। आज हमारी पाठशाला प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में उत्तरायण का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग सभी बच्चों ने अलग अलग राज्यों का उत्तरायण का जश्न कैसे मनाते हैं, अलग अलग राज्यों में वो कैसे मनाते हैं वो आपने देखा। जैसे महाराष्ट्र में लोग हल्दी कुंकू करते हैं, तिलगुल देते हैं और नौवारी साड़ियाँ पहनते हैं। गुजराती में ऊंधियू, जलेबी और फाफड़ा और बहुत कुछ बनाते हैं और चनिया चोली पहन के पतंग उड़ा के अपना मनोरंजन करते हैं। और आपने देखा तमिल में पोंगल बना के, वह एकदम खीर जैसा होता है खाने में और बहुत अच्छा लगता है, उसे पोंगल कहते हैं। और हर साल हमारे स्कूल में यह त्योहार बहुत जश्न से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आता है। इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का फल कई गुना प्राप्त होता है।
बच्चों को पता चलता है कि मकर संक्रांति भारत में अलग अलग रीति रिवाज से कैसे मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। बच्चों को यह इंफॉर्मेशन ऐसा मिलता है कि लोग ऐसे ऐसे मनाते हैं। आज प्रिंस अशोक राजे गायकवाड स्कूल और देवेनी राजे गायकवाड स्कूल के अंदर एक सुंदर उत्तरायण का कार्यक्रम किया। उत्तरायण यानी हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य देव को हम समर्पित पूरा कार्यक्रम किया है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो हम लोग काम करते हैं कि भगवान के साथ सूर्य देव को भी प्रणाम करते हैं और उनको हम रिझाने का प्रयत्न करते हैं। ये पूरा समय ऐसा है कि जिसके अंदर सब विद्यार्थियों को हमने इंटरनेशनली क्या होता है, तो खास पोंगल के दिन हमने पोंगल यूज़ किया साउथ इंडियन बच्चों के द्वारा। पूरा उन्होंने पायसम बनाया, साथ में ट्रेडिशनल वेयर में आए गुजराती लोगों ने ऊंधिયું जलेबी बनाया, पतंग उत्सव का महत्व समझाया। साथ में पंजाबी लोगों ने जो लोहड़ी का त्यौहार मनाते उसके अंदर आग अग्नि प्रकट करके उसके अंदर जो धान्य होता है उसको समर्पित किया। साथ में मराठी लोगों ने हल्दी कुमकुम किया और साथ में गिफ्ट भी देते जो मराठी ट्रेडिशन है, ब्लैक साड़ी पहन के आए। और जो बंगाली लोगों ने उसने गंगा स्नान और पूरा विविधता में समझाया। जापानीज, यूरोपियन, चाइनीज सब बन के आए थे जो अपने अपने देश में जो इस समय का जो त्यौहार का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाया। साथ में आज नृत्य करके हमने ये सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को बधाई दी और लाइफ में इसी तरह की हर एक को आनंद उल्लास हो ये हमने अपेक्षा रखी है और भगवान से। वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 9 और 10 में पिछले कई वक्त से स्ट्रीट लाइट की जरूरत जताई जा रही थी, जिसे आखिरकार पूरा कर दिया गया है। गुजरात की वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा कार्यकारी वार्ड नंबर 9 और 10 में आने वाले सेवासी से भाईली अक्षर पेट्रोल पंप तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिसका लोकार्पण वडोदरा के मेयर और सयाजीगंज के विधायक केयूर रोकड़िया के हाथों किया गया। 33 लाख रुपए के खर्च से यहां स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे अंधेरे में वाहन चालकों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर सेवासी चेक पोस्ट पर स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केयूर रोकड़िया के साथ वार्ड नंबर 9 के युवा कॉर्पोरेटर श्रीरंग, राजेश आयरे और अन्य काउंसिलरों की उपस्थिति रही। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वॉर्ड नंबर 9 અને વોર્ડ નંબર 10 ને અડધ્યો વિસ્તાર એટલે કે ઝાયડસથી એટલે પ્રિયા ટોકીઝ 4 રસ્તાથી સેવાસી ઝાયડસ સુધીના આખા રોડ પર સેન્ટ્રલ લાઇટિંગ 33 લાખના ખર્ચે જે કોર્પોરેશને લાઇટિંગ ઉપલબ્ધ કરાવી છે અને એમાં આજે સ્વિચ પાડીને આજથી લોકોની સુવિધામાં લાઇટ ચાલુ થાય આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશને અહીંયા પ્રયત્ન કર્યો છે અને એની સાથે આ વિસ્તારના રોડ સાઈડ પર જે કેટલાક દબાણો હતા અને ઝૂંપડા હતા એ પણ 3-4 દિવસ પહેલાં તમામ કોર્પોરેશને દૂર કરીને લોકોની સુવિધામાં વધારો થાય, દબાણ મુક્ત વડોદરા થાય આ દિશાની અંદર પ્રયત્ન કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે।
સેવાસીની અંદર આવેલું અમારે સેવાસી ચેકપોસ્ટથી લઈને પ્રિયા ટોકીઝને જોડતો રસ્તાનું જે સ્ટ્રીટ લાઇટનું કામ ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ હતું. આજના દિવસે ચારે કાઉન્સિલરના માધ્યમથી તેમજ વડોદરા શહેરના મેયરના હસ્તે આજના દિવસે 33,92,000નું આ કામ છે. આ કામ મંજૂર કરીને આજના દિવસે કામ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે વિસ્તારની અંદર ઘણા સમયથી અંધારું હતું. આજના દિવસે લાઇટનું ખાસ મુહૂર્ત કરીને તમામ જગ્યાએ લાઇટ પ્રકાશિત કરી દેવામાં આવી છે. વિસ્તારની અંદર જ્યાં પણ અંધારાનો વિસ્તાર છે ચારેય જગ્યાએ ચારેય કાઉન્સિલરના માધ્યમથી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. નરસિંહભાઈ હોય, સુરેખાબેન છે, હું શ્રીરંગ આયરે, ઉમિશાબેન છે. ચાર કાઉન્સિલરના અથાગ પ્રયત્નોથી હજુ પણ વિસ્તારમાં જેટલી પણ લાઇટો બાકી છે એ લાઇટો અમે પૂર્ણપણે કરવા માટે સક્ષમ છે અને આવનારા સમયની અંદર નવા બજેટમાં પણ તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેવી રીતે સેવાસી નવો વિસ્તાર અમારી માટે છે, 1.5 વર્ષથી આ વિસ્તારનો અમારામાં સમાવેશ થયો છે. તો આવનારા સમયની અંદર જે પણ જગ્યાઓ હજુ કામોમાં બાકી છે, ડ્રેનેજ લાઇન હોય, પાણીની લાઇન હોય કે સ્ટ્રીટ લાઇટ હોય, તમામ પ્રકારની સેવાઓ આપવા માટે ચારે કાઉન્સિલરના માધ્યમથી બજેટના જે પણ કામો હવે મુકાવાના છે તેના માટે પણ મેયરશ્રીને તેમજ અમારા કાર્યપાલક અમારા એન્જિનિયરો છે તેમને પણ સૂચન કરી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે જે પણ સમસ્યાઓ છે ટૂંક સમયની અંદરથી આ સમસ્યાઓમાંથી પાર પડે તેવો અમારું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के शेष स्कूल में बच्चों के लिए पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति पर गुजरात में पतंग उड़ाने की पुरानी परंपरा है, जिसमें हर उम्र के लोग उतने ही उत्साह के साथ शामिल होते हैं। बड़ी उम्र से लेकर छोटी उम्र तक के सभी लोगों को पतंग उत्सव काफी प्रिय होता है। ऐसे में वडोदरा के मांजलपुर में स्थित श्रेयस स्कूल द्वारा बच्चों के साथ मिलकर पतंगोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने का खूब आनंद लिया। हम अभी श्रेयस विद्यालय में हैं और दो साल से अभी कोरोना चल रहा था तो हमें कोई पतंग वतंग चगाने नहीं मिली थी। आज इस साल हमने आज हमारे स्कूल में ये अरेंजमेंट किया है, इसलिए हम लोग आज चगा रहे हैं और बहुत हवा भी अच्छी चल रही है, इसलिए हमें लोगों को मज़ा भी आ रहा है बहुत। उत्तरायण एक ऐसा फेस्टिवल है जो जिसमें सब लोग काइट्स उड़ाते हैं। उत्तरायण एक ऐसा फेस्टिवल है इंडियन जिसमें हम एक इंडियन कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल के आने से हम हमारी जो विंटर सीज़न होती है वो एंड होती है और हमारा न्यू हार्वेस्ट सीज़न का बिगिनिंग होता है। ये फेस्टिवल के दिन सन होता है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में अपनी पोजीशन अपनी बिगिनिंग उसकी जर्नी चालू करता है, इसलिए उसे बोला जाता है उत्तरायण। ઉત્તરાયણ એ કુદરતનો ઉત્સવ છે. આથી સૂર્યના દિવસે તે સૂર્ય ઉત્તર તરફ જાય છે તેથી તેને ઉત્તરાયણ કહેવાય છે. આજે અમારા શાળામાં પણ ઉત્તરાયણની સમજણ કે તે કેમ ઉજવવામાં આવે છે, તે કેવી રીતે થાય છે અને ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો શું કરે છે તેની મજા માણવા માટે અમારા શાળામાં પણ ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરવામાં આવેલ છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધા કેવી રીતે આનંદ લે છે અને અમને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી છે કે અમારા શાળામાં પણ ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરવામાં। के दिन सूर्य धनु राशि में से मकर राशि में जाता है, इसीलिए उसे मकर संक्रांति कहते हैं। अब पृथ्वी भी अपने आसपास की परिक्रमा बदल रही है, उसको उत्तर दिशा की ओर जा रही है, इसीलिए उसको उत्तरायण भी कहते हैं। आज का दिन बहुत शुभ भी माना जाता है। हमारे बच्चे 2 साल से कोविड की वजह से प्रत्यक्ष उत्तरायण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उनमें आनंद और उल्लास दिखा। बहुत अच्छी तरीके से सबने शाला के प्रांगण में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। हमारा यही संदेश है कि आप इस त्यौहार को अपने परिवार के साथ अच्छी तरह मनाएं, लेकिन पशु पक्षी और आने जाने वाले जो बाइक पे जो लोग हैं उनका ध्यान रखें और सावधानी बरतें। गुजरात के वडोदरा के सोखड़ा में कोटेवा एग्रीसाइंस कंपनी द्वारा दीपक फाउंडेशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा नियमित रूप से सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसी के तहत कोटेवा एग्रीसाइंस कंपनी द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत सोखड़ा में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा ग्रामीणों का इलाज किया गया। ये बहुत अच्छा आयोजन है दीपक फाउंडेशन की ओर से। गांव में सबको सुविधा मिलती है, गरीब लोग, मध्यम वर्ग सब लोग अपना इलाज करवाते हैं। बारंबार ये कैंप होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दीपक फाउंडेशन की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ચામડીના રોગો છે, ચશ્માનું છે તથા બીપીનું ને એનું બધું જે કરવામાં આવ્યું છે।
इस मौके पर भवाई के जरिए ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जागरूक भी किया गया। हम यहाँ पे आज सोखड़ा गांव में आए हुए हैं। फ्री कैंप लगाया हुआ है, हेल्थ चेकअप वगैरह, विद द सपोर्ट ऑफ दीपक फाउंडेशन। और ये मेरी CSR साइट की कमेटी है और काफ़ी धन्यवाद करता हूँ मैं दीपक फाउंडेशन, मेरी CSR कमेटी और यहाँ के जो गांव की अथॉरिटी है जिनके सपोर्ट से इतना अच्छा कैंप लगा है। रिस्पांस देख सकते हैं, अभी हमने किक ऑफ किया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी कुछ बेनिफिट लेने के लिए आए हुए हैं। आज सोखड़ा गांव में कॉर्टिवा एग्री साइंस के सपोर्ट से दीपक फाउंडेशन के हमारे जो डायरेक्टर है मिस जय पवार, उनकी एडवाइस से हमने यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट और बेसिक लैब सर्विसेज का प्लानिंग किया गया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्क्रीनिंग करना और पर्टिकुलर ऐसे डिजीज़ या ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और लाइफस्टाइल डिजीज़ कि जो पेशेंट के बॉडी में होता है लेकिन उसका आउटकम बहुत लेट निकलता है। तो ऐसे अगर डिजीज़ थोड़े जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी डेफिनेटली ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है और इससे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेન્ડિચર भी कम होता है। આજે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, બહુ મોટા પાયા પર કરવામાં આવ્યું છે। એની અંદર સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત છે, બાળક રોગ છે, ચામડીના રોગ છે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે, દરેક ડૉક્ટર અહીંયા હાજર છે। આવો પહેલી વખત કેમ્પ સોખડા ગામમાં થઈ રહ્યો છે, એ બદલ સોખડા ગામના દરેક દર્દીઓ અહીંયા આવશે અને એનો કેમ્પનો લાભ લે એવી અમારી ભાવના છે। वडोदरा के एक्सपेरिमेंटल स्कूल में उत्तरायण के उपलक्ष्य में पतंग उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे गुजरात में उत्तरायण की धूम देखने मिल रही है। इसी के तहत वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी संचालित एक्सपेरिमेंटल स्कूल में भी काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्कूलों के बच्चों ने साथ मिलकर पतंग उड़ाने का आनंद लिया। पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों ने शिक्षकों और अपने साथी मित्रों के साथ खूब आनंद किया। आज यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बच्चों के लिए हमने पतंगोत्सव का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं बच्चे बहुत खुशी से आज ये उत्सव मना रहे हैं। एक बात है कि बच्चों को हमने पहले ही सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं उसकी सूचना दे दी गई थी और उस हिसाब से उन्होंने आज बहुत उत्साह से तैयारी की है। देखिए ये बच्चे हमारे बहुत ही आनंद में हैं और आप सभी को मैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं पाठवती हूँ। गुजरात के वडोदरा में कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर में स्पोर्ट्स डे आयोजित कर बच्चों को खेलने कूदने का प्लेटफॉर्म दिया गया। खेलकूद हम सभी के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। उससे शारीरिक फायदा तो होता ही है, मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है। खेल के जरिए ही अनुशासन और खेल भावना बच्चों में विकसित होती है। बच्चों में बचपन से ही खेल भावना का विकास हो, इस आशय के साथ गुजरात के वडोदरा की कारेलीबाग में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जहां छोटे बच्चों के अनुरूप खेल गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी इन खेल गतिविधियों में उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। मैं आज ब्राइट प्ले सेंटर में स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपने बच्चे के साथ आया हूँ और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं अपने खेल को लेके और जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस स्कूल में कंडक्ट की जा रही है उस तरह से मुझे लग रहा है कि शायद बच्चे आगे बढ़कर कुछ ना कुछ यहाँ पर खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आने वाले समय में भारत देश के लिए बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। और ये आजकल के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि पहले हम ये लोग समझते थे कि शायद केवल पढ़ाई ही केवल एक मात्र रास्ता है जो बच्चों को आगे लेकर जा सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है और आजकल के स्कूल्स में खेल के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना हम पढ़ाई के ऊपर देते थे। खेल कूद हर एक के जीवन में बहुत उपयोगी है, वो हमें अनुशासन के साथ साथ चिंता और तनाव में से भी मुक्ति दिलाते हैं। आज हमने ब्राइट प्ले सेंटर में कारेलीबाग में अपने छोटे से बच्चों में खेल कूद की भावना का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो उसी एक विषय के ध्यान में रखते हुए एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों ने बहुत उत्साहभेर पार्टिसिपेट किया है तथा बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने भी उपस्थित रहकर उनका हौसला बढ़ाया है।
ऑर्गन डोनेशन पर ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, इस आशय के साथ हैदराबाद से सामाजिक संगठनों द्वारा एक खास अभियान शुरू किया गया है। मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है, जिस पर देश भर में जागरूकता फैलाई जा रही है। हैदराबाद से मोहन फाउंडेशन और एडवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ऑर्गन डोनेशन पर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक रथ निकाला गया है। 5 जनवरी से हैदराबाद से भोपाल तक इस रथ के जरिए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस रथ के वडोदरा आगमन पर चकली सर्कल निकट सभी को ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी गई। मोहन फाउंडेशन और एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस से मिल के एक ऑर्गन डोनेशन कैंपेन किया है, जो हम कंसिस्टेंट करते आए हुए। लास्ट ईयर भी हमने किया था, जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक दिन में 54,576 लोगों को हमने ऑर्गन डोनेशन कैंपेन के तहत ऑर्गन डोनेट किया है और इतने लोगों का जान बचा है। इंडिया और अक्रॉस इंडिया हमने ये दिया है। और इस साल भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमने 5 जनवरी से हैदराबाद से स्टार्ट करके 28 जनवरी को हम भोपाल में एंड करेंगे, जिसमें 22 सिटी हम इंक्लूड है। तो 22 सिटी से हमारा ये रथ गुजरेगा और आखिर में 28 तारीख को भोपाल में ख़त्म करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है बाय एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस विद द हेल्प ऑफ मोहन फाउंडेशन, इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, हमने 2019 से ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, एंड तब भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऑर्गन डोनेशन का इन वेरी फर्स्ट ईयर। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने अपने सारे ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं, है ना। और ये जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू हम सारे इंडिया में लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके जो भी ऑर्गन है, ठीक है, आप जब भी नहीं रहोगे, आपके जाने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर पीपल, जो दूसरों को नया लाइफ दे सकते हैं, है ना। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे एडलवाइज टोक्यो का इनिशिएटिव है कि इन ट्रू सेंस वी आर प्रोटेक्टिंग द लाइफ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सो थ्रू दिस इनिशिएटिव और ऑर्गन डोनेशन वी आर जस्ट हेल्पिंग द पीपल टू डोनेट देयर ऑर्गन। हमारी कंपनी ने बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद में भी हमारी कुछ चीज़ें अगर किसी को काम आ सकती है तो दैट इज़ अ ग्रेटफुल। और एडलवाइज ने पास्ट में भी ऑर्गन डोनेशन किया हुआ है मोहन फाउंडेशन के साथ में, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का भी अवार्ड मिला हुआ है हमारी कंपनी को। और फिर से ये इनिशिएटिव लिया है। 5 जैन से ये जर्नी स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से, और 28 जैन को ये ख़त्म होगा भोपाल में, जो इंडिया के मैप पे एक हार्ट क्रिएट करेगा। तो हमने पूरा इंडिया एक हार्ट के ज़रिए मैसेज लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपने आप को ये डोनेशन कैंप में इन्वॉल्व करना चाहिए। गुजरात के वडोदरा की नूतन पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में स्कूल के छात्रों ने अद्भुत प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। गुजरात की स्कूलों में इन दिनों वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। वडोदरा के समा सावली रोड पर नूतन पब्लिक स्कूल है। नूतन पब्लिक स्कूल द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के मौके और युवा दिवस के शुभ अवसर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव के साथ साथ इनाम वितरण समारोह भी समा सावली रोड पर मधुवन फार्म में आयोजित किया गया। इस वार्षिकोत्सव में 400 जितने छात्रों ने शिरकत करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां दी, जिसमें सरस्वती वंदना, सुपर हीरो थीम, लाइव संगीत, योगासन, मलखम पिरामिड, कोडिंग प्रोजेक्ट का डेमो, देशभक्ति गीत पर डांस जैसी कई कृति प्रदर्शित की गई। इस मौके पर स्कूल के मेधावी छात्रों का स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद रंजन बहन भट्ट, भाजपा वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने उपस्थित रहकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। रोज नूतन पब्लिक स्कूलનો 5મો એન્યુઅલ કોન્સર્ટ મધુવન ફાર્મ ખાતે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। એમાં 400 છોકરાઓએ ભાગ લીધો છે। ખાસ કરીને છોકરાઓમાં રહેલી આંતરિક શક્તિ બહાર આવે અને છોકરાઓ આજે ખૂબ આગળ વધે, એ આનો મુખ્ય હેતુ છે। 400 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड और ये सारे स्टूडेंट्स एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को, अपने आप को एनकरेज करना चाहते हैं। और ये एक कॉन्सर्ट सिर्फ
एंटरटेनमेंट नहीं है, एक थीम बेस्ड है जिसमें हमने स्पोर्ट्स की थीम रखी है, पेट्रियाटिज्म रखा है, योग रखा है, मलखम रखा है और बहुत कुछ है। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। फिट रहे आप, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर महिला को जीना पड़ता है। एक सर्टन एज के बाद में उस सिचुएशन में जब महिला आती है तो हर फीमेल ये सोचती है, क्यों मुझे कोई समझता नहीं है, क्यों मेरी ये परेशानी से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, परिवार के सदस्य क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेनोपॉज की। मेनोपॉज एक ऐसी समस्या है हर महिला के लिए जिसे गुजरना ही पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ सालों तक। और ये जो समय होता है वो इतना क्रुशियल समय होता है कि जब मेनोपॉज एक महिला का शुरू होता है तब अगर उसकी शादी जल्दी हो गई है, अभी खैर हालात अलग हैं कि शादी लेट होती है इसलिए बच्चे भी लेट होते हैं, तो मेनोपॉज के समय तक बच्चे शादी की उम्र तक नहीं पहुंचते हैं। मगर एक समय था जब एक महिला का मेनोपॉज शुरू हुआ है और वो सासू जी बनती हैं, घर में बहू आती हैं और वो समय बहुत क्रुशियल हो जाता है। और आज जिस तरह बहुत ज़्यादा हालात बदले हैं तो ऐसे में वर्किंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा परेशानी को झेल रही हैं, परेशानी से जूझ रही हैं। इसीलिए मेनोपॉज के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आपके पास जानकारी होगी, मगर जब ऑथेंटिक जानकारी देने वाला कोई हो तो वो जानकारी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मेनोपॉज हमारा आज का टॉपिक है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है वडोदरा जाइडस हॉस्पिटल से डॉक्टर प्राची सबनिस। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि मेनोपॉज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहला यही सवाल है कि मेनोपॉज क्या है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो मेनोपॉज की डेफिनेशन से चालू करते हैं। जी। मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि पीरियड से रिटायर होते हो आप। जी। सो मेनोपॉज ये टर्मिनोलॉजी अगर किसी महिला को 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आए हैं तो हम उस लेडी को मेनोपॉज अचीव किया ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मेनोपॉज एक इंसिडेंस नहीं है, वो कई सालों तक स्ट्रेच हो सकता है। तो मेनोपॉज इसका मतलब 12 महीने तक महीना ना आना, उसके पहले जो बॉडी या शरीर में चेंजेस होते हैं उसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। सो बेसिकली मेनोपॉज का मतलब है कि जो हमको हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे फीमेल बॉडी में फीमेल हार्मोन्स जिसको हमारी टर्म्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बोला जाता है, तो वो बॉडी से कम होना चालू होते हैं और मेनोपॉज के टाइम पे वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं या नए नहीं बनते हैं। तो मेनोपॉज पे वो सारे बॉडीज के हार्मोन्स ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। जी। वो समय जहाँ पे ये स्टार्ट होती है प्रोसेस और जब तक मेनोपॉज अचीव होता है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। और एक बार मेनोपॉज के बाद जो लेडी अपनी लाइफ लीड करती है उसको पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। और सिम्टम्स क्या है? कई सारे सिम्टम्स हैं एक्चुअली, बट हर एक के लिए वो अलग होता है। अलग होता है। तो किसी को कुछ नहीं लगता है, कोई सिम्टम्स नहीं आता या कोई उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, किसी लेडी को काफ़ी सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं। जी जी जी। तो सबसे कॉमन सिम्टम से शुरू करते हैं, जैसे पसीना आना एकदम से। तो अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, लेडी इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज, तो उस टाइम पे उस लेडी को एकदम से गर्म लगना चालू होता है। किसी को रूम में गर्मी नहीं लगे लेकिन उनको गर्मी लगती है, बेचैन सा महसूस होता है, पसीने छूटने लगते हैं। ये काफ़ी हद तक कॉमन सिम्टम है। जी जी। उसके बाद मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मतलब लेडी ऐसे पहले शायद नहीं थी लेकिन अभी छोटी छोटी सी बातों से उनको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होने लगता है। और ऐसे घर में भी सबको वो नोटिस होता है। अगर उनके साथ कोई रिलेटिव आता है डॉक्टर के पास
तो वो बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं थी पहले, लेकिन हर छोटी बात से इनको अभी चिढ़ होने लगी है। उनको भी ऐसे लगता है कि जो लेडी इससे गुज़र रही है उनको भी ये उनके लिए नॉर्मल नहीं लगता है जी। तो ये एक और सिम्टम है। मूड स्विंग के अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये भी हो सकता है। कई बार नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लशेस, ये 2 चीज़ें हो सकती है। अभी नाइट स्वेट्स मतलब जब लेडी सो रही है एकदम से उनको घबराहट जैसे होके पसीने छूटने लगते हैं। ओके। और उनकी जो नींद है वो खुल जाती है, जिसको नाइट स्वेट्स बोलते हैं। एकदम डर के वो उठ जाती है नींद में से, गहरी नींद में से। हॉट फ्लशेस या स्वेट्स जो बोलते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स है, जिसका मतलब जो ब्लड सप्लाई करते हैं अपने ऑर्गन्स को, वो एकदम से फ्लशिंग हो जाता है। इसका मतलब है कि एकदम एक आधा ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाता है, हमको गर्मी न लगने लगती है और पसीने आते हैं। तो ये काफ़ी हद तक कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है घुटने दुखना, बोन लॉस होना या ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकल टर्म्स में जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है। सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, जिसको शारीरिक संबंध रखने में प्रॉब्लम आना, उसमें इंटरेस्ट कम होना, वजाइना में सूखापन महसूस होना, और ऐसे कई एक सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉज से रिलेट किए जा सकते हैं। बट एज मैंने पहले भी बताया, सबको सारी चीज़ें नहीं होती है, सबको अलग अलग होता है। एग्जैक्टली जी। इसकी जानकारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सभी के घरों में महिलाएं हैं और उनको पता ही होता है, फिर भी जानकारी क्यों ज़रूरी है? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमको जानना क्यों ज़रूरी है? अगर हम समझ सके कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं या ऐसे मेनोपॉज में हो सकता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल या डील कर पाएंगे। अपने घर पे जो लोग हैं, वर्क स्टेशन पे या अपने वर्क प्रोफेशनल जगह पे अपने साथ जो लोग हैं, वो भी इसको समझ के उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मेनोपॉज क्यों होता है जी? सो मेनोपॉज बेसिकली जैसे गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, स्त्री का जन्म होता है, तो उस टाइम पे उनके शरीर में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एग्स या अंडे जिसको बोलते हैं वो होता है, जो कि प्यूबर्टी से चालू होता है। 10, 12, 13 साल पे जब पीरियड्स चालू होते हैं तब चालू होता है, और मेनोपॉज के टाइम पे ये एग्स ख़त्म हो जाते हैं, बनना बंद हो जाते हैं। और ये एग्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद ये बंद होने की वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। जी। मेनोपॉज कौन सी उम्र से शुरू होता है मैम? ओके, स्पेसिफिकली ऐसी एक उम्र नहीं बता सकते, रेंज होती है जी। तो जैसे लेट 40s या अर्ली 50s, सो रफली अबाउट 44-45 से एज से लेकर 52-53 एज तक मेनोपॉज हो सकता है जी। यूजुअली अगर किसी महिला के मदर को जिस एज पे मेनोपॉज आया है, उसी एज के दौरान लेडी को मेनोपॉज आने की एक्सपेक्टेशन या संभावना रहती है। और कितना लंबा चलता है मेनोपॉज? कई बार किसी में 6 महीने, 1 साल, कई बार 2 या 3 साल ऐसे चल सकता है। सो मेनोपॉज पर से मेनोपॉज ख़त्म हो जाने पे हम उसको मेनोपॉज लेबल करते हैं, पर हमने जो पहले डिस्कस किया पेरी मेनोपॉज, ये जो पीरियड है वो 2, 3, 4 साल तक चल सकता है। वो हर एक के लिए अलग हो सकता है जी। तो कोई 6 महीने में ही उससे बाहर निकल सकता है, किसी के लिए वो लंबे अरसे तक चल सकता है जी। किसी को तो 5 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबल है जी। मैम, एक धारणा है कि गर्भाशय निकाल दिया, उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में महिला ये सोचती है कि मैं मेनोपॉज से फ्री हो गई, अब मुझे मेनोपॉज नहीं आएगा, तो क्या ऐसा होता है? इसमें 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, गर्भाशय या बच्चेदानी हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है 9 महीने तक। तो अगर वो हम निकाल देते हैं तो उसके साथ अंडाशय या ओवरीज जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर गर्भाशय निकाल दिया है और ओवरीज या अंडाशय शरीर के अंदर है तो तुरंत मेनोपॉज नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने, 1 साल तक हो सकता है। अगर गर्भाशय के साथ साथ किसी महिला को ओवरीज या अंडाशय की कोई तकलीफ़ है, शिकायत है, और उसकी वजह से गर्भाशय के साथ अंडाशय भी निकाले हैं, तो उस लेडी को मेनोपॉज तुरंत ही सर्जरी बाद महसूस हो सकता है।
हॉट फ्लशेस से बचें कैसे और अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखें? एक्चुअली ये सिम्टम जो है हॉट फ्लैश जो है या बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये हर एक सिम्टम को अगर हम देखें तो उसके सिम्टम्स रेंज कई हद तक हो सकते हैं, जिसका मतलब है इसके थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं या सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। सो हम माइल्ड की बात करते हैं बिकॉज सीवियर सिम्टम्स के लिए डॉक्टर के पास या गायनेक के पास जाके उसकी थेरेपीज लेना ज़रूरी है। माइल्ड सिम्टम्स में अगर हॉट फ्लैशेस हैं आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी खुली अच्छी वेल वेंटिलेटेड जगह पे बैठ सकते हैं या टहल सकते हैं। जब आपको हॉट फ्लैश का ऐसे महसूस हो रहा है उस टाइम पे आप जाके खुली हवा ले सकते हैं। जैसे ट्रिगर्स होते हैं, किसी चीज़ से अगर हॉट फ्लैश आपको आता है तो आप वो चीज़ प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या कोई स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें अगर किसी लेडी को किसी चीज़ों से स्पेसिफिकली हॉट फ्लैश ट्रिगर होता है तो ये बेस्ट रहेगा कि वो चीज़ें वो अवॉइड कर दे। ये हॉट फ्लैश के बारे में रहा। जी। डाइट में अपने कैल्शियम और विटामिन डी इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो कैल्शियम के जो सोर्सेस है, इसका मतलब जो दूध के प्रोडक्ट्स, सेसमे सीड्स या तिल, रागी, ऐसी सारी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। सप्लीमेंट्स उसके ऊपर लेने पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छी बात है। जी। ये रहा हॉट फ्लैशेस के बारे में। मेनोपॉज के बाद ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये होता क्यों है? जैसे एज हो जाती है मेनोपॉज में, हम 40-45 से भी आगे हो सकते हैं, तो एपेटाइट या अपना खाना जो हमको भूख लगती है वो एज की वजह से कम हो जाती है, तो कैल्शियम इंटेक भी कम हो जाता है। और मेनोपॉज के बाद बॉडी की जो एब्सॉर्प्शन है, जो हम चीज़ें खाते हैं और वो बॉडी अपने इंटेस्टाइन्स में उसको एब्सॉर्ब करता है, तो वो एब्सॉर्प्शन पावर भी बॉडी की कम हो जाती है। तो अभी ये कहाँ से मिलेगा कैल्शियम? तो बॉडी में जो ऑलरेडी बोन्स हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये कैल्शियम वहाँ से निकल के ब्लड सप्लाई में आता है। और वहाँ से निकलने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। इसीलिए ये टर्म ऑस्टियोपोरोसिस को मेनोपॉज के साथ जोड़ा जा सकता है। जी। अपार्ट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस जॉइंट पेन भी साथ में शुरू हो सकता है। अब ये जॉइंट पेन क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेनोपॉज के बाद थोड़ा वज़न भी बढ़ सकता है, तो हड्डियों में एक तेल या साइनोवियल फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं वो बफर की तरह एक्ट करता है। तो दो हड्डियों के बीच में ये शॉक एब्सॉर्बिंग की तरह एक्ट करता है। एज की वजह से या अपने डाइट की वजह से वो जब कम हो जाता है तो हड्डियाँ एक दूसरे पे घिसने लगती है, इस वजह से जॉइंट पेन चालू हो सकता है। अब ये कॉमन है, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? जैसे मैंने बताया, डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं, और दूसरी बात एक्सरसाइज जारी रखें, कसरत जारी रखें। स्पेशली अगर आप वॉकिंग, रनिंग ऐसे कर सकते हैं तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। जी। इसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जैसे जिम में हम वेट्स उठाते हैं, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज भी अपने हड्डियों को, मसल्स को और स्ट्रेंथन करती है। सिंपल सी चीज़, अपने शॉपिंग के बैग्स खुद उठाएं। सही बात है। मेनोपॉज में क्या दिल की बीमारी की भी संभावना होती है? जी। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स हैं, और मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन्स ऑलमोस्ट कम होके नील हो जाती है बॉडी में से। तो इसमें से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो किसी भी लेडी के लिए हार्ट प्रोटेक्टिव होता है। हृदय को वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या हार्ट की और कोई और बीमारी हो, इससे ये प्रोटेक्शन देता है। अब मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन ऑलमोस्ट नील हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स के इंसिडेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात ऐसे कि स्ट्रोक्स के भी इंसिडेंस ज़्यादा हो सकते हैं इसके मेनोपॉज के बाद। आपने जिक्र किया था सेक्सुअल लाइफ पर असर होता है मेनोपॉज पीरियड में, तो क्यों ऐसा होता है? इसके भी अगेन दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मेनोपॉज के बाद जो वजाइनल सूखापन आता है उसकी वजह से रिलेशंस रखने में तकलीफ़ होती है।
कई बार जो है रिलेशन रखने के टाइम पे नॉर्मली बॉडी फ्लूइड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आता है वैसे ही हमारे वजाइना में भी सिक्रेशंस होते हैं जी। अब मेनोपॉज के बाद बिकॉज ये हार्मोन्स कम हो गए, ये सारे सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, तो रिलेशन रखने में और दिक्कत आती है जी। ऐसे टाइम पे अगर तकलीफ होती है तो बॉडी उस बात को मना करती है, ये वन ऑफ द रीजंस हो गया। दूसरी बात ऐसे कि जैसे एज हो जाता है या हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर भी अपने से कम हो जाती है और इन तकलीफ़ों की वजह से उसको और बढ़ावा मिलता है कि रिलेशन रखने का थोड़ा सा जैसे उब से जाते हैं उस बात से। इसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की वजह से ये हो सकता है, ये दिख सकता है। तो वजाइनल ड्राइनेस को कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या करें? काफ़ी हद तक वजाइनल ड्राइनेस अगर थोड़े प्रमाण में अगर है तो उसको हम मॉइस्चराइज़र या लूब्रिकेंट्स ये यूज़ करके उसको हम देख सकते हैं कि वो उससे जो हो रही है दिक्कत वो कम हो जाए जी। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब सीवियर वजाइनल ड्राइनेस है जिसकी वजह से रिलेशन रखने में ज़ख्म हो रही है, तो उस टाइम पे अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन या एप्लीकेशंस ऑफ जेल दे सकते हैं जो कि इस तकलीफ़ के लिए हमको यूज़फुल हो सकता है। मेनोपॉज के दौरान नींद कम हो जाती है, ऐसी भी शिकायतें लोग करते हैं जी। तो क्या ये सच है? वो भी मेनोपॉज के ही सिम्टम्स हैं, तो और उससे बचने क्या करें? ओके हाँ, ये तो बात सही है कि मेनोपॉज के बाद बहुत कम नींद आती है या जिसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती उनको भी रात को इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, रात को हार्डली कुछ नींद आती है बिकॉज बॉडी वो उस स्टेट में जा ही नहीं, रिलैक्स हो ही नहीं पाती है। सो अभी हम इसके लिए सिंपल सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे दिन के टाइम पे नैपिंग ज़्यादा ना करें, जैसे 2-2 3-3 घंटे हम कई बार दोपहर को टायर्ड होते रेस्ट कर लेते हैं जी, तो वो दोपहर को ना करके ताकि रात की कंटिन्यूस नींद हो पाए, ये हम ट्राई कर सकते हैं। रात को कोई हैवी काम ना करें, जैसे आप अगर इफ़ यू आर वर्किंग और किसी चीज़ में आपका मन लग रहा है तो बॉडी कूल डाउन होने में थोड़ा समय लगता है, तो रात को सोने से पहले कोई हैवी वर्क या इवन हैवी डिनर ना करें। डिनर के और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का अंतर अगर रहता है तो नींद आने में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है जी। स्पेशली चाय कॉफ़ी शाम के बाद 4-5 बजे के बाद ना ले, अपने रूम में अंधेरा कर रखे, शांति रखे, टीवी और कोई मोबाइल जो आजकल सब लोग सोने से पहले देखते हैं, अगर वो सोने से पहले हम अवॉइड कर सके तो इससे बहुत सुकून की नींद आ सकती है जी। हार्मोन थेरेपी के बारे में बताएं कि वो मेनोपॉज के दौरान लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए या उसके बाद लेनी चाहिए? ओके कि मेनोपॉज के बाद बॉडी के हार्मोन्स मतलब शरीर में जो बनने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो कम हो के बंद हो जाते हैं जी। अभी इनकी वजह से कई महिलाओं को जो लक्षण दिखते हैं वो माइल्ड भी हो सकते हैं, मतलब थोड़े हद तक हो सकते हैं या काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी में बंद हो गई है हार्मोन्स बनना, हम उनको बाहर से देते हैं, इसका मतलब दवाइयों के रूप में लेडी को सप्लीमेंट करते हैं अगर किसी चीज़ से दिक्कत हो रही हो। पर मेरी सलाह ये रहेगी कि हार्मोन थेरेपी करने के पहले ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, बिकॉज ये हार्मोन्स हम अगर दे रहे हैं तो वो देने ज़रूरी है कि नहीं, कौन ले सकता है, कैसी डोज में लेना चाहिए, कितनी देर तक लेना चाहिए, ये बहुत समझने वाली चीज़ें है। इसको अब्यूज़ ना करें, हार्मोन थेरेपी को अब्यूज़ करेंगे तो उसके अपने बॉडी पे इल इफ़ेक्ट्स या जो दुष्परिणाम है वो दिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर होता है मेनोपॉज के दौरान, तो उसे कैसे अच्छा रखें? मानसिक हम हेल्दी रहना चाहें मेनोपॉज के दौरान तो क्या करें? जैसे हमने लक्षण में डिस्कस किया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं जी। तो इनमें से अगर एक आध भी लक्षण आपको दिखता है तो आपको ज़रूर, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, ये अपने माइंड को काम करती है। अच्छा म्यूज़िक सुनना, एग्जैक्टली अच्छा जो अपने मन को शांत करे ऐसा म्यूज़िक सुन सकते हैं जी।
अपार्ट फ्रॉम कामिंग द माइंड, फिज़िकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज से फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि माइंड को काम करते हैं। और अगर हम अपने आजू बाजू के लोगों को हम बता दें कि आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज और मुझे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से कोऑपरेट करके समझ सकते हैं और वो मानसिक संतुलन को कायम रखने में बहुत हेल्प करता है। बच के रहना वाली बात है। यस, है ना, कि भाई मैं ये मेरी हालत है अभी, तो ये आप संभल के रहें। एक दौर आता है जब आप भूलना ज़्यादा शुरू हो जाता है आपका मेनोपॉज के दौरान, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? जिसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। इसका मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम हमारे कान उसको सुनते हैं, माइंड इंटरप्रीट करता है और हम उससे एक्शंस लेते हैं जी। तो ये एज होने की वजह से भी कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन मेनोपॉज से भी है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स कम होते हैं उसके कॉग्निशन में फंक्शन जो होता है जितना इफेक्टिवली वो होना चाहिए वो उतना होता नहीं है। इसीलिए कोई छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैंने पेन कहाँ छोड़ दी, ऐसे सिंपल सारी चीज़ें होने लगती है जी। तो पहले तो ये समझ ले कि ये नॉर्मल है, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ जी। और उससे कोप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइंड को अगर हम थोड़ा एक्टिव रख सके, इसका मतलब हम अगर कोई गेम्स खेलते हैं जैसे चेस हो गया, सुडोकू हो गया, जो माइंड को स्टिमुलेट करे, तो उसकी वजह से ये कॉग्निशन फंक्शन काफ़ी दिनों तक शार्प रह सकता है। अपना ब्रेन जैसे पेंसिल को शार्प नहीं करते वैसे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए ये इस तरीके के गेम्स अगर हम वी इंडल्ज इनटू दीज गेम्स, मतलब अगर हम ये गेम्स खेलते हैं तो उससे अपना माइंड काफ़ी हद तक पूरा चला तो नहीं जाएगा, कॉग्निशन पूरा हम जैसे पहले थे वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसके जो लक्षण है वो कम दिख सकते हैं। मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के दौरान खान पान में क्या ज़्यादा ध्यान रखें जिससे थोड़ा सा आसान रहे सारी चीज़ें? थोड़ा सा हम माइंडफुली अगर खाने की तरफ देखते हैं तो हम जंक अवॉइड करके जो पौष्टिक खाना होता है, जो हमारे आयुर्वेद में और पहले से बोला है कि नेचुरल चीज़ें, प्लांट बेस्ड चीज़ें ये खाओ जी, तो वो लेने से, ये सेवन करने से मेनोपॉज के सिम्पटम्स काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें आयरन और कैल्शियम होता है, पालक, मेथी, जो सीज़न में आ रही चीज़ें हैं उनको खाने से, या सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सोयाबीन जिसको हम बोलते हैं, उसके नगेट्स मिलते हैं बाज़ार में, तो इनमें ईस्ट्रोजन के हार्मोन जो होते हैं वो ऑलरेडी उस पदार्थ में ऑलरेडी होते हैं, तो अगर उनका हम सेवन करें तो ये जो हमको सीवियर सिम्टम्स दिख रहे हैं हम उनको माइल्ड कर सकते हैं। इनके अलावा अगर हम ब्लैक करंट्स, रेजिन्स, सीज़न में जो फ्रूट्स है इनका सेवन करें तो अपनी बॉडी के लिए वो हेल्दी भी है और मेनोपॉज के सिम्टम्स वो कम भी कर देते हैं। मेनोपॉज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल में बदलाव ताकि मेनोपॉज पीरियड को हम बहुत आसान सरल बना सकें? खाना बराबर से खाना है और अपने हैबिट्स जो है वो अच्छे की तरफ मोड़ने हैं। तो खाने में जैसे हमने डिस्कस किया, दूध ले लो, खाने में अच्छी सीजनल फ्रूट्स एंड फल जो है उसको ले लो, और लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइज कर लो, सुबह उठते ही योगा करना या फिज़िकल एक्सरसाइज करना, दिन भर ना सोते हुए या दिन भर आपको स्क्रीन देखना है तो दोपहर से पहले या शाम से पहले अपना टीवी ये वॉच कर ले। रात को सोते समय टीवी या स्क्रीन से दूर रहें। तो ये एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने से हमारा मेनोपॉज के साथ एकदम स्मूथ सेलिंग हो सकता है। सभी महिलाओं के लिए और सभी घर के सदस्यों के लिए बहुत आसान रहेगा मेनोपॉज से डील करना। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्राची सबनीस से। उन्होंने मेनोपॉज के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो बातों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी जानकारी लोगों के पास में कम है उसमें बढ़ाने का श्रेय आपको जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
किसी भी महिला को ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये पीरियड ताउम्र रहने वाला है। सो मेनोपॉज ऐसा पीरियड है जहाँ पर कुछ चीज़ों पर पॉज लग जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें थम जाती हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी थम गई है। सो हेल्दी रहें, हमेशा खुश रहें। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव, सबसे इम्पॉर्टेंट वो बदलाव होता है कि हर हाल में हम खुश रहना सीख लें। हम खुश रहेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा और सब कुछ सही चल रहा है ये महसूस होगा। वीएनएम पर खबरें और ऐसी खास चर्चा देखने के लिए जुड़ते रहे हमारे साथ। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी, जिस पर दिन भर खबरें देखते रहें और अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार।